We have done all the configurations, and I hope my screens are visible and I am audible. Can anyone confirm, sir, you are audible and your screens are visible, so that we can start it? Yes, sir. Okay, thank you. I already have open. Yes, okay. What we have done? We have done all the configurations. The configuration which we have done, we have created first as a house bank. Okay, we have created a house bank. After the house bank, we have created the check lot. Then we have assigned the house bank to my GL account. Correct. Then we have done automatic payment process using the T code FBZP. Within FBZP for the path as a SPRO, SAP reference IMG, financial accounting. Under the financial accounting, accounts payable, receivables and payable. Then business transactions, okay, outgoing payment. Okay, where is my outgoing payment? Outgoing payment. Then within outgoing payment, automatic outgoing payment. Okay, and here payment method oblique bank selection for payment program. And within this, we have done this all these steps. 5 to 6 steps we have done in a complete requirement of my business scenario. Okay, and also we have posed some transactions and using the T code as a which one? FBL1N. Okay, FBL1N, FBL1N. Within FBL1N, I can see the outstanding list of my vendor. Okay, open item, and these are my vendor list. We can have the L&T, Larsen Turbo, then we have one-time vendor, then we have the second one as Airtel Communication, and then fourth vendors are Radhesham Wellpack Private Limited. Okay, so these are the invoice are outstanding in their respective GL account. Correct? Then now I'll have to post the automatic payment program. To post automatic payment program or to run automatic payment program, you can write down the T code or F110. Yes. F110. Okay. End user activity as a automatic payment program run. Write down. कलम में क्या लिखा था? Run automatic payment. Run automatic payment program and the T code are F110 and the path. अब तक के जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सब हमने SPRO में किया. If you remember that. Yes. Okay. So SPRO is purely as a consultant work, not as an end user work. ओके तो ये नहीं बोलने का कि सर हमने तो पूरा एंड यूजर का ही काम, हमने तो पूरा कंसल्टेंट का काम हमें कुछ आता ही नहीं है. तो नॉट लाइक दिस. Whenever you are using SPRO is purely as a consultant work, not as an end user work. Okay, make sure that and remember this one. नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद में बोलेंगे हमने कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किया सर. बराबर है ना? हाँ, ऐसा नहीं बोलने का. बराबर है ना मीनाक्षी मैडम? Yes. Okay, then to run SPRO कंसल्टेंट वर्क होता है और दूसरा एंड यूजर का. एंड यूजर का जो वर्क होता है वो SAP मेनू में से ही चालू होता है. ओके, एंड यूजर को SPRO को ऑथराइजेशन नहीं रहता है. अगर आपको बिजनेस का कॉन्फ़िगरेशन करने का है, बिजनेस सिनेरियो बनाने का है, तो आपको SPRO में ही काम करना पड़ेगा. अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हो 2.5 years एक्सपीरियंस का, तो यू शुड नो द नॉलेज ऑफ SPRO, SAP मेनू. इन SPRO you have to do all system designing. ओके, तो बिल्डिंग बनाने के पहले जो अभी हमारे को SAP अगर इम्प्लीमेंट करने का है, उसके लिए कुछ हमारे को डिजाइन बनाना पड़ेगा. तो कंप्लीट डिजाइनिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इसलिए हमने ग्रुप कंपनी क्रिएट किया. ग्रुप कंपनी के अंडर में हमने एक प्लांट क्रिएट किया. ओके, वो प्लांट को लगने वाला जो भी पैरामीटर फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसके हिसाब से हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया. हमने MM का कुछ भी नहीं किया. MM इज नॉट आवर पार्ट. MM वाला MM का, MM कंसल्टेंट MM वाला करेगा.
एसडी वाला एसडी का करेगा, हम फाइनेंस के हैं तो हमारे को ये एक्टिविटी करने का है, ठीक है। सो द एसपीआरओ इज टोटली एज अ कंसल्टेंट वर्क। अगर आपको रियली आपका करियर बनाने का है तो यू शुड नो एसपीआरओ वेरी वेल, ठीक है। तो द टी कोड्स आर F110 and the path are SAP menu. Write down SAP menu, accounting, financial accounting, under the financial accounting, accounts payable, and under the accounts payable, here you have the options as a periodic processing. And under the periodic processing, here you have the option as F110 payments. F110 payments mean automatic payments. Okay, execute, double click. Okay, once you double click, you will get this screen in front of you, and in the status you can have the status, parameter, free selection, additional log, printout data medium, and everything here. Okay, the status right now by default this activity tabs are, as of now there is no parameter are entered as here. Once you enter the parameter, it will shows one by one below in this line. Okay, so now the automatic payment transaction status. Now the run date is today's date. Okay, so select the today's date here. Okay, give the today's date here. Today's date is 23rd 11 2022. Okay, correct. Then give any identification, any identification, character, numeric, alphanumeric. Will give DN. आज का डेट क्या है 23. ओके, आई विल गिव, मैं क्या करता हूँ डी देता हूँ यहाँ पे, डी 23/11. पता चला मेरे को डी मेरा इनिशियल है, मेरे को 23/11 चाहिए, तो मैं जितना भी दूंगा डीए कभी आपका डुप्लीकेशन में नहीं आएगा. कल करेंगे तो 24/11 आएगा, बराबर है ना. तो इमीडिएट आपको पता चलेगा कि 23/11 का मेरा कौन सा है. आप कुछ भी दे दो यहाँ पे, ABCD दे दो, 1 2 3 4 दे, सिस्टम ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने 23/11 को क्या कौन सा पेमेंट का प्रपोजल किया हुआ है. करेक्ट. सो इट्स अ लॉजिकल. 23/11 आपका कभी आएगा नहीं ये साल में, तो ये फाइनेंशियल ईयर में तो कभी आएगा नहीं, बराबर है कि नहीं. अगले फाइनेंशियल में अगर आपको करने का है तो एन कर दो उसके आगे. डी हमने फर्स्ट ईयर यूज किया, सेकेंड ईयर एन कर दो, इस हिसाब से चलो, ठीक है. नाउ द आइडेंटिफिकेशंस आर D 2311, that means 23rd November. Status as or no, as a no parameter entered as it. Then change the status as a parameter. Click on the parameter. Okay. Posting dates, today's posting date. डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू, दैट मीन्स जब आप ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपको कहां तक के पोस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट कंसीडर करने के हैं. अगर आपने किया कि चलो ठीक है मेरे को 20/11 तक के ही डॉक्यूमेंट कंसीडर करने के पेमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू मीन्स व्हाट, सिंपल वर्ड्स, ठीक है. तो आप यहाँ पे 20/11 दे दो, 21 22 23 में जो भी आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं वो सिस्टम कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है. सो आई विल गिव यू 23rd. By default I have 2030. Okay, then company code DN10. correct. पेमेंट मेथड हमने कौन सा पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, सी. रैंकिंग ऑर्डर हमने सी का किया हुआ है, टी का नहीं किया हुआ है. सर उसमें मेरे को इशू आ रहा था, एक ट्रांसफर का किया था, नहीं कर रहा था. पेमेंट मेथड आपको क्या करना है, सी करना है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यहां से आप सिलेक्ट कर दो चेक. ओके, देन नेक्स्ट पेमेंट डेट.
नेक्स्ट पेमेंट डेट मीन्स अब नेक्स्ट आप नेक्स्ट ऑटोमेटिक पेमेंट कब रन करोगे? आई विल गिव टुमारो। आपने अगर यहाँ पे बोल दिया कि मैं 28 को करूंगा और आपको इन्वेंटरी में अगर करने का है तो सिस्टम अलाउड नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए कल करूं या ना करूं, दैट इज अ ऑप्शन फॉर मी। सो आई विल गिव हियर एज अ 24/11/2022, ठीक है? देन यू हैव द अकाउंट हियर, अकाउंट वेंडर। सो वेंडर जीएल अकाउंट नंबर मेरे को चाहिए। तो वेंडर जीएल अकाउंट मेरा कहां से शुरू मिलेगा मेरे को? इफ यू सिलेक्ट हियर एज अ सर्च ऑप्शन, ओके, दीज आर माय 4 वेंडर। तो मैं चारों के चारों लेता हूं। द लोएस्ट कौन सा है इसमें का? लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट वाला ये है, बराबर है 401399, ओके 401399। और हाईएस्ट कौन सा है इसमें का? 899 वाला ये हो सकता है ना? तो इसके बीच में जो भी आपके वेंडर रहेंगे सब के सब आ जाएंगे। अभी मेरे पास में 4 ही है, अगर इसके बीच में आपके 200 रहेंगे तो 200 के 200 आ जाएंगे, ठीक है? या तो आप अभी हमने एक के बीच में 100 का गैप छोड़ा है ना, तो अगर आपको सिर्फ ये अगर रॉ मटेरियल का है तो 401399 to 4014001499, तो सिर्फ रॉ मटेरियल के ही वेंडर कंसीडर करेगा वो। हमने हर एक वेंडर का अकाउंट नंबरिंग रेंज में 100 का गैप रखा है, बराबर है, करेक्ट? तो रॉ मटेरियल का लेने का है तो मैं क्या करूंगा, 401399 से शुरू होगा और 401499 तक के। तो कितने आएंगे? सिर्फ रॉ मटेरियल के ही आएंगे। अभी मेरे को इतना नहीं तो मेरे को सभी लेने का है। सो आई विल से हियर, नोट डाउन दिस, ये लिख लो आप। Can we go next step? Kanchan madam, I am waiting for confirmation. Yes, sir, done. Okay, then click on the additional log. Click on the additional log. Next tab as a click on the additional log, and in additional log, what parameter system has to check? Check, select due date check, and then second one as a payment method selection in all criteria, in all cases. Okay, नीचे का तो छोड़ दो, not required. Then you can enter the vendor number from and to, जो हमने पिछले स्क्रीन पे मेंटेन किया है, you can maintain here as a 401399,
and then 401899. So these are the vendor. In my list, I have only 4 vendor. तो इन बिटवीन ये नंबर के बीच में जितने भी रहेंगे आपके 100, 200, 400 सब आ जाएंगे इसमें. तो इसीलिए और नॉर्मली इन रियल टाइम यू हैव टू क्रिएट द नंबर रेंज एज अ सेपरेट फॉर अकाउंट ग्रुप के हिसाब से. परचेस रॉ मटेरियल के लिए अलग नंबर रेंज कर दो, कंज्यूमर के लिए अलग नंबर रेंज कर दो, एसेट के लिए अलग कर दो, सर्विस के लिए अलग कर दो, वन टाइम के लिए अलग कर दो. तो मैनेजमेंट कभी भी आपको मांग सकता है कि मेरे को रॉ मटेरियल के वेंडर का लिस्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ उतना ही देने का है ना उसमें, तो उतना ही आ जाएगा. आप बहुत टाइम आपको सिस्टम यही पूछता है फ्रॉम और टू. तो अगर फ्रॉम और टू आपका अगर सही है देन एवरीथिंग विल बी इजी. एक्सपोर्ट के लिए भी आपको इजी हो जाएगा ना डाटा पूरा. ओके, एंड देन यू कैन सेव इट. क्लिक ऑन द सेव ऑप्शंस, क्लिक ऑन द सेव. You will get you have details have been saved for run on 23rd 11/22 and the identifications are D 23rd 11. Okay, is it clear? Then click on the status. You will get the parameter have been status change हो गया अभी. पहले क्या था status? There is no parameter. Now system find some parameters for identification D2311. Okay, so now the next one click on the scheduled proposal. Top of the screen, click on the scheduled proposal. Double click on scheduled proposal. Once you double click, you can just select here as a start immediately. Start immediately. Okay, and then say continue. Say continue means scheduled. Either continuation or tab means what? Scheduled. Click on the schedule here. Okay, you will get the proposal is running. Put enter one time. Once you enter one time, then you will get the payment proposal has been created. Payment proposal has been created. Okay, once the payment proposal has been created, my system will give you to your another options open here. अब तक के ऑप्शंस ओपन होते थे क्या है? नहीं. जब एक एक स्टेप आप आगे जाओगे तब भी ओपन हो गई है, अदरवाइज ओपन नहीं होंगे. Then here the status, payment run, then edit proposal. Double click on the third option as a edit proposal. Double click on edit proposal. Okay, then here you will get the accounting clerk. Just say continue here. Click on the continue. Click on the continue, and once you click on the continue, my system has already taken the run date as today's date, identification are D2311, paying company code system automatically capture, sending company code system automatically capture, and then say continue. Okay, so these are the vendor. बराबर, हर एक वेंडर का आउटस्टैंडिंग मेरे को आ गया. L&T का 3,88,000 था, मे बी 1 इनवॉइस, मे बी 2 इनवॉइस और मे बी 10 इनवॉइस. ओके, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है, वन टाइम वेंडर एयरटेल कम्युनिकेशन एंड राधेश्याम वेलफेयर. ओके, नाउ फर्स्ट आई विल टेक द L&T. So select the vendor line. Select the vendor line. Okay, then double click. Once you double click, you will get the invoice wise outstanding here. Okay,
सो फर्स्ट इनवॉइस 1,85,000। तो इसमें से हमारे को कौन सा पेमेंट करने का है। सो विल कंसिडर फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस एज 1,85,000। सो select this line, select this line, select the line which you want to make the payment through automatic. Okay, then double click. Once you double click, you will get the change line item display. Here you don't have to do anything, just you can payment terms or payment terms baseline date 5/5 के लिए उसमें अमाउंट डिस्काउंट बेस अमाउंट कुछ भी नहीं है. ओके, सो क्लिक ऑन द reallocate, click on the reallocate. Okay, click on the continue, or you can click on the continue. Okay. Say click on the reallocate. Once you click on the reallocate, you can enter the payment method as a C. Okay, then my house bank are Canara Bank and ID are again Canara Bank. Make this setting. In change payment tab, enter payment method as a C, house bank as a Canara 1 and ID as a Canara 1. Okay, then continue. ये 1,85,000 का कलर चेंज हो गया. पहले क्या था, ब्लैक था, अभी क्या हो गया, ब्लू हो गया. ठीक है, ये एक इनवॉइस हमने ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए कंसीडर किया हुआ है. ये भी करते हैं हम लोग, या 98,000 का करते हैं. इसमें का कौन सा करने का हमारे को, वी विल से एज 98,000. सो सिलेक्ट दिस लाइन, डबल क्लिक. ओके, अगेन क्लिक ऑन द reallocate. दैट एक ऑलरेडी है. क्लिक ऑन द न्यू पेमेंट method as a C, house bank as a Canara Bank. Okay, then the ID as a Canara Bank. Okay, then continue. ये भी हो गया. ठीक है, अब और लेने का इसमें का, we can say 30,000. ओके, we say 30,000. तो एक वेंडर का हमने 3 इनवॉइस कंसीडर किया हुआ है ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए. ओके, सो डबल क्लिक ऑन दिस लाइन, क्लिक ऑन द reallocate. So these are the 2 already exist. Again click on the new payment, then payment method as a C, house bank as a Canara Bank, then ID as a Canara Bank. Okay, and then continue. तो जो भी लाइन हमने सिलेक्ट किया है उसका सबका कलर चेंज हो गया है from black to blue. That means these lines are activated for my automatic payment program. Right? Then save it. Okay, save it. Then go one step back here. तो जो लाइन सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और सिस्टम ने सर्टेन पैरामीटर्स हैव ऑटोमेटिकली इंसर्टेड हियर. पेमेंट, पहले हमने ये लाइन सेलेक्ट किया 1, 2 and 3. पेमेंट मेथड सी ऑटोमेटिक आ गया. हाउस बैंक ऑटोमेटिक आ गया, हाउस बैंक की ऑटोमेटिक आ गया, अकाउंट आईडी ऑटोमेटिक आ गया. ओके, then you can see here these are the account number ऑटोमेटिक आ गया.
our account number is also automatically captured. Okay, then you can see bank country is India, correct. So these are the automatic parameter system has captured L and T के लिए. Second vendor as a one time vendor, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं. One time vendor, select this vendor, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है. ओके, सो डबल क्लिक हियर, click on the reallocate, payment method as a C, my house banks are Canara Bank, then ID as a Canara Bank, and then say continue. ओके, एक ही है तो एक ही आएगा उसमें. गो बैक, गो बैक, ये भी हो गया यहाँ पे, ठीक है. सेकेंड वन एज अ एयरटेल कम्युनिकेशन. Select this line, double click. How many invoices? 3 invoices. Out of 3, we will select as 85,000 का लेते हैं हम लोग. 85,000. Double click on this line. Go to reallocate. Payment method as a C. House bank are Canara Bank. ID are Canara Bank. Okay, and then say continue. Then we'll consider as which lines, say 35,000. Double click on this line, click on the reallocate. One line already exists, and then say new payment. Again click on the payment method as C. House bank are Canara Bank, then ID are again Canara Bank. Okay, and then say continue. So these two invoice are considered for automatic payment process, correct? Yes. Then go back from here. देखो एयरटेल का 2 लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, 1 2 3 4 5 and 6. Now we have the Radheshyam. Okay, so select this line, डबल क्लिक. कितना इनवाइस है? 4 है इसका. विल कंसिडर फॉर दिस वन 75,000. 75,000 reallocate, check house bank, Canara Bank, then ID again as a Canara Bank. Continue. Then we'll consider as a 95,000 का लेते हैं. 95,000 reallocate, new payment, payment method as a C, house bank or Canara Bank, then IDR again Canara Bank. Continue. We'll consider 65,000 also. Okay, we'll consider 65,000 also. Reallocate, new payment, C, house bank or Canara Bank, then same here as a, and then continue. Okay, then go back here. Okay, so these are the green lines are considered for automatic payment process. Okay, clear idea? Anyone have the doubt? So total we have considered as a 9 payment, 9 invoice we are clearing in a one shot. Just within a 2 seconds we'll clear 9 payment, 9 invoices with all entries. Okay. Yes, I have to ask online people. Yes, anyone? Yes, Meenakshi, can you? Is it clear? Kanchan. Yes, sir. Okay. Then save it. Okay. Then save it. Click on the save. इसका snapshot चाहिए तो ले लो आप. वैसा recording में है already. है ना? Save it. You can see these all parameters are system are taken here. Correct. Everything system has taken it here. Then save it. You will get the changes have been saved.
ओके, अब आगे क्या करना है? ओके, बैक जाने का है, गो बैक, यू विल गेट द पेमेंट प्रपोजल हैज बीन एडिटेड. ठीक है, नाउ वी हैव टू, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन हियर अप टू दिस स्टेज. अगर आपको कहीं पे एरर आता है तो एरर आके यहाँ पे अटक जाएगा वो. ठीक है, हो सकता है आपको कुछ एरर आएगा, let them come error, then you have the payment run. Once you will get, आपके स्टेटस में लिख के रखो, आपने यहाँ तक लिख के रखा है ना. Once you will edit proposal, after editing the proposal, your status should be payment proposal has been edited. After editing the proposal, the status should be payment proposal has been edited. Payment proposal has been edited. Okay, then I will run the payment. Click on the payment run. Here you have the payment run, means schedule payment run. Click on the payment run options. Double click on payment run options. Right, once I double click, it will ask me the schedule, we have already done it, and then say schedule. Double click on schedule. Once you double click on schedule, wait some time, and then you can put the enter. Posting order 9s are generated, and then 9s are completed. Everything posting has been done. सर शेड्यूल वर क्लिक केलं म्हणजे कुठे क्लिक केलं आपण? टिक मार्क केला, कंटिन्यू केला, त्याला कंटिन्यू केला. ठीक है, तो हमने कितना इनवॉइस कंसीडर किया था? 9. पोस्टिंग ऑर्डर कितना किया? उसे 9 किया, और जनरेट कितना किया? 9 किया. अब हम हमारे इसमें जाते हैं, किसमें? यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं. ओके, सो विल गो बैक, here and then we'll execute, and we can say all items. See, 23/11 को हमने पेमेंट किया. See, ग्रीन हो गया, क्लियर हो गए. तो LNT का जो भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिक डाला सिस्टम ने 3, 4, 5. सिस्टम ने मेरे को एक लाइन तो भी पूछा, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उतना परफेक्ट है. तो भाई साहब कितना 500 इनवॉइस का पेमेंट कर दो, पेमेंट टाइम असाइन करो, ऑटोमेटिक पेमेंट रन करो, और रॉ मटेरियल का जो भी आपका वेंडर है 100, सबका पेमेंट आपका हो जाएगा. जैसा फाइल जनरेट होगा उसका एक PDF फाइल जनरेट होगा, जो कि बैंक फॉर्मेट में लगता है. ओके, क्योंकि बैंक को उनके फॉर्मेट में लगता है. तो सिस्टम हैज जनरेटेड वन फाइल, देन फाइल गोज टू द मैनेजर फॉर अप्रूवल. ओके, जैसा वो वहाँ पे अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद में सीधा कहाँ हिट होगा? वो मेरा बैंक अकाउंट HDFC कैनरा बैंक को हिट होगा वो. ओके, और जब कैनरा बैंक का बैच प्रोसेस करेगा, सेम मोमेंट माय बैंक विल बी क्रेडिट डेबिट. बैंक को डेबिट होगा ना, मेरा बैंक को डेबिट होगा, और जो भी वेंडर का मैंने बैंक डाटा मेंटेन किया हुआ है उसके साथ साथ में वेंडर का बैंक डाटा भी जाएगा ना उसके साथ में. ठीक है, LNT का बैंक अकाउंट किस में है, उसका IFSC कोड क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, सब हमारे को वेंडर मास्टर डाटा में मेंटेन करने का है. इफ यू मेंटेन करेक्टली, देन इट विल शूट द पेमेंट डायरेक्टली टू द LNT को क्रेडिट चले जाएगा, और अपने आप को
अपने अकाउंट में उतना डेबिट हो जाएगा। तो ये होगा मेरा L&T का। ओके, दूसरा वन टाइम वेंडर। वन टाइम वेंडर का देखो एक ही था, आज का ही डेट है, सब आज का ही है, क्लियर। एयरटेल कम्युनिकेशन वी कैन हैव दिस टू इनवॉइस, डेट देखिए आज का ही है 23/11, 23/11, 7th और 8th, correct? Then you can have the Radheshyam. Radheshyam have the invoice are, these are the invoice. See, ये एक पेमेंट किया, ये एक पेमेंट किया और ये एक पेमेंट किया, और डॉक्यूमेंट नंबर सीरियली सिस्टम जनरेट, एक भी नंबर बीच में छोड़ा नहीं है। ऑटोमेटिक उसने KZ वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक ले लिया उसने। ओके, ये हो गया मेरा। I'll open the another screen as a FBL3N। तो बैंक में से बैंक में जाना चाहिए ना पैसा, बैंक में भी जाना चाहिए। सो आई विल सी इज ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स। इन ऑल आइटम्स यू कैन सी हियर परचेस रॉ मटेरियल को भी आपने पेमेंट किया ना, देखिए आज का 23rd का जो भी है आपका, एंड इट्स अ ग्रीन, इट्स अ ग्रीन। तो आपका परचेस रॉ मटेरियल में जो जितना देने का, जितना आपने पे किया उतना उसमें से माइनस हो गया, एंड इट्स अ क्लियर। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल का हमने राधेश्याम का किया 1, 2 और 3। सो दीज आर द क्लियर हियर, ठीक है। वन टाइम वेंडर क्लियर। परचेस सर्विस का, सर्विस का हमने 2 लिया था, सी दीज आर द 2। ओके, ये हो गया इसका। यहाँ पे भी इफेक्ट बराबर है, वेंडर को भी इफेक्ट बराबर है। अभी बैंक में भी जाना, बैंक में से पैसा जाना चाहिए, तो बैंक में से पैसा गया कि नहीं गया देख लीजिए आप। सी 3 to 11, these are the entries। okay, so if you are done configuration correctly, then your message should be like this। सोपं आहे ना? सोपं आहे ना? हा, काय अवघड नाही सर। मग आता हे स्टेटमेंट जर आपल्याला बँक वगैरे द्यायचं असतं, आता जर त्याला तुम्हाला अभ्यापचं प्रोग्रामिंग करावं लागतं ना बॅक एंड साईडला, ते अभ्यापवाले करतात। एज FI कंसल्टेंट इफ दिस हैज बीन डन और आपका बैंक का हो गया, तो फिर मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली अभ्याप वाला प्रोग्राम लिखेगा जो बैंक फॉर्मेट में चाहिए, और वो अप्रूवल के लिए चले जाएगा। ओके ओके, रुचिरा मैडम, इज देयर एनी डाउट? Not yet, sir. Okay, when it comes? After practice. When it will be done? Tomorrow? Yes, sir. Okay, yes, my Kanchan madam, is it any doubt? Hello. Yes, Meenakshi madam, is it clear? Hello. Ranjita madam, is it clear? Yes, sir. Okay. हेलो, Yes madam. नेटवर्क प्रॉब्लेम है। कॉम्प्लिकेटेड आहे थोडंसं सर, थोडंसंच आहे ना, जास्त नाही आहे कॉम्प्लिकेटेड. हो पण प्रॅक्टिस लागेल त्याला करावं. प्रॅक्टिस मध्ये येणार ते। जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. हो पण सर थोडीशी प्रॅक्टिस करावी लागेल, त्याशिवाय लगेच एका याच्यात नाही जमणार ते. ओके, आई नो वेरी वेल। एक बार में नहीं होगा ये। हाँ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तो जब प्रैक्टिस करने का, जब प्रैक्टिस करते हैं तब इशू आते हैं। हाँ, तो अभी तक तो मेरे को एक ने भी इशू नहीं पूछा है, तो एक भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
नहीं नहीं है, इश्यू आते हैं, वो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाता है, पूछने से पहले खुद ही सॉल्व करके देखते हैं सर। अच्छा, ओके, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग आपको यूज होता है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी यूज होता है। ओके, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता है इसमें। सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 या फिर 3 महीने की रिकॉर्डिंग रह जाए, क्योंकि जब मतलब ऑन द स्पॉट क्वेरी आती है हम बैक में जाते हाँ तो रिकॉर्डिंग ही नहीं रहता है। नहीं, ये तो स्काइप का है, राइट्स है, मेरा राइट्स नहीं है ये। नहीं एक्चुअली सर, मैंने तो अभी मतलब मेरे जो नोट्स है, मैं जो नोट्स निकालती हूँ तो रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड मतलब जो भी यूजफुल है यानी जरूरी है वो सब लिख लेती हूँ मैं, लिखा है और नोट्स निकाले है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पहले एंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर नेक्स्ट एंट्री में थोड़ा इश्यू आता है, तो मैं खुद ही मतलब ये या फिर दूसरा वे ढूंढ के उसे सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। हाँ, आपका डायरी में ही आपको हेल्प करेगा इसके लिए। हाँ डायरी हाँ में अगर आपने प्रॉपर तो ही हाँ। आपको रहेगा, नहीं रिकॉर्डिंग के भरोसे अगर रहे अभी तो वो तो रिकॉर्डिंग फिर रहती आपको। नहीं है ना, सिर्फ 1 मंथ है ना, तो इसलिए मैंने सभी लिख के ही लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, तो लिख के लिखा है तो आपका माइंड में वो फिट बैठ जाता है। मतलब हेल्प अगर होती है। सुन के छोड़ा सेव्ह करून घ्यायची ना. सेव करता येते का? हो अच्छा 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 हो, सेव्ह करून ठेवायची. अच्छा म्हणजे आफ्टर 1 मंथ पण वापरू शकतो का आपण ती? हो, कधीही आपल्या म्हणजे कशी गॅलरी. करायची ती? अच्छा, आप टीचर हो ना, इसलिए आप सेव करके रखते हो। कशी बरं मला सांगता का? हा मला पण. आपले रेकॉर्डिंग आहे ना, झाल्या सरांनी पाठवल्यानंतर क्लिक करून त्यावर ऑप्शन येतात सेव्ह. ते सेव्ह हा केल्यानंतर हा हा. मग अच्छा, मग लॅपटॉप मध्ये सेव्ह होतं का मॅम ते? नाही, मोबाईल मध्ये होतं ना. अच्छा, मोबाईल मध्ये करायचं का ते? हो हो, होतं अच्छा ना. हा होतंय होतंय. हा. अच्छा 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 है फिर। हो. ओके, तो वो भी करके देखो। 1 मिनिट रे. हाँ Okay, so you can try to save this, but don't share to anywhere. यस सर यस वो तो है। हाँ, हाँ अगर मुझे पता चल जाता है किसने शेयर किया तो। नहीं नहीं, शेयर कैसे करेंगे, हमने क्लास लगाया और बाकी को शेयर कैसे करेंगे? नहीं, क्या भरोसा, आपके फ्रेंड है, अरे क्यों क्लास लगाते हो, चलो मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो ऐसे कोई फ्रेंड्स है लेकिन ही नहीं मतलब एक्साइटेड से रिकॉर्डिंग रहे. कांटेक्ट में जो एसएपी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हुए हैं पर उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास ये नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बैकअप कोई। आप आपके जैसा कोई एडवाइजर में प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, तो चलो ठीक है, आप सेव करके रखो आप, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप आपके डायरी में लिखो, क्योंकि मैं डायरी में लिखो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब भी आपका अगर गलती से अगर आपका लैपटॉप का पूरा डाटा स्क्रैच हो गया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, उस टाइम पे आपको डायरी ही हेल्प करेगा। ठीक है, सर सेव्ह झाल्यानंतरही सगळं रेकॉर्ड ठेवावा लागतो. म्हणजे डायरीत करावीच लागते. इट्स अप टू यू। हो, नाही नाही, आपण मी ती सेव्ह सेव्ह करून केली ठेवतोय बरं का, ना, पण ती त्यानंतर आपण गॅलरी नोट्स मध्ये नाही काढाव्याच लागतात. होणार. फक्त रेकॉर्डिंग वर होणार नाही सर. मी सेव्ह नाही, नोट्स काढावंच मी ती लागतं. व्हिडिओ हो, सेव्ह कारण केली आहे. परमनंट हेल्प करू शकते ना आपल्याला, पुढे हा. काही एरर आली तर. Yes, you can coordinate, you can meet one place, okay? Maybe in Baramati or maybe in Pune or maybe even idhar udhar Amravati, okay? And discuss, and okay, if you are familiar, then okay, so whatever you are facing issue at the time of configuration, okay, Yes, put yes. on this Skype group,
ओके सो दोस्त इसमें से जो भी हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हमारे 9 मेंबर्स है इसमें, जिसको भी लगा कि हमारे को हेल्प करने का है तो आप इमीडिएट मैडम को हेल्प करो। जिसको भी एरर आता है डोंट बी हेजिटेट टू आस्क, डोंट बी हेजिटेट टू आस्क। यस अगर आपको किसी को भी एरर आता है, कांचन मैडम को आता है, रंजिता को आता है, मीनाक्षी को आता है, रुचिरा को आता है, या फिर हमारे यहाँ पे 3 बंदे बैठे हैं, 3-4 बंदे बैठे हैं, तो किसी को भी आता है, ओके इट्स अ फैमिली, यू कैन से इट्स अ फैमिली, ओके, एंड इट्स अ टोटल एज अ इंटरेक्शन सेक्शंस। सो डोंट बी हेजिटेट कि मैं अभी क्या करूं, मुझे एरर आया तो मैं सर को ही पूछूं क्या, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो विद इन अ ग्रुप यू कैन डिस्कस इट। यस ओके सो थैंक यू फॉर गुड डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा। ओके सो आप प्लान कर लो एक बार मिलने का एंड देन यू कैन कंटिन्यू दैट। सो ओके सी यू, बाय बाय। सो एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, इट्स नॉट नहीं है, सो एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड।